everyone and welcome you all to my channel Simran Speaks. Today we are going to talk about how to write an effective CV. Trust me, I find this CV writing job very monotonous. सारी डिटेल्स, सारे स्किल्स, सारी एजुकेशन डिटेल्स लिखो, बैठो, करो. And trust me, though it is monotonous, though it is very boring, लेकिन अगर हमें जॉब लेना है तो सीवी बनाना है. We have to make a CV if we are looking for a good job opportunity. क्योंकि CV है तो जॉब है. रिस्क है तो इश्क है. So today we'll give you all the steps how we can write a CV so that it becomes very effective and we can get a good job option in the market. To begin with, your CV should look like this, starting with your name, followed by your personal information. Your personal information should contain your email ID. Now this should be a very simple, standard, official email ID. Should not have very cranky or unofficial names. जैसे उसमें आप Sweet 16 या Rockstar, Rock Boy इस तरह के नाम आपने नहीं देने हैं. आप सिंपल अपना नाम, फॉर एग्जाम्पल if I write my email ID, it has to be simran@gmail.com. अगर उस नाम का वो email ID एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आप आगे अल्फाबेट्स लेके उसको क्रिएट कर सकते हैं. आप आगे न्यूमेरिक्स के साथ उस ईमेल को बना सकते हैं. सो योर email ID, योर कॉन्टेक्ट नंबर, एक सोशल मीडिया साइट आप दे सकते हैं या लिंक्डइन का दे सकते हैं. You can also write your Skype ID. Many times the employers want to take a Skype interview. So आप अपना Skype ID वहाँ पे mention कर सकते हैं. इसके अलावा information like your marital status, your date of birth, your complete address can be skipped off. आपको picture या image भी लगाने की जरूरत नहीं है. ये सारी information जो है ये at the time of interview share हो सकती है. Because this will take unnecessary space. So avoid giving all this information. So let's move ahead to the next section. Next section is your work experience details. Your work experience details should always start from the reverse chronological order, which is starting about your recent job option. इसको आपने सबसे पहले जो आपका करंट जॉब ऑप्शन है उससे शुरू करना है एंड धीरे धीरे आप मूव करेंगे टू योर फर्स्ट जॉब. The most common mistake that people make in writing about the job option is generally लोग क्या करते हैं, अपने जो डेली के वर्क रूटीन है या डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उसको डिस्क्राइब करते हैं. मैं ईमेल लिखता था, मैं कॉलिंग करता था, मैं यहाँ ये करता था, मैं वो करता था. That is okay, that's fine. Employers no longer, they are not interested in what you were doing in day-to-day work. They are interested that how your work made an impact to your employer. For example, if you were handling the social media sites of your company, so rather than writing that you are managing a social media site of your company, you can present it this way, that I revamped the business on the social media side, which led to increase the revenue of the company by 4%. And it also earned 80,000 followers on the social media site. So this way you are quantifying what you were doing. So ये quantification जो है, this will give you the confidence to the employer कि हाँ इस बंदे ने ये काम किया था, ये उसने पूरा quantify करके बताया. अब फैक्ट ये है कि चाहे वो बिग 4 फर्म हो, चाहे MNC हो, चाहे वो प्राइवेट लाला कंपनी हो, एक चीज है जो सब में कॉमन है. हर कोई क्या देखता है? प्रॉफिट. आप कैसे उनको प्रॉफिट अर्न करके देंगे और जिस तरह से आप अपने स्किल्स डिस्क्राइब करेंगे, this should show or this should give them the confidence that yes, this person has that ability who can give us the profit, who can give us the business. और इस तरह से जो भी स्किल्स जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं आप उनको स्प्रिंकल कर सकते हैं, आप उसको एड ऑन कर सकते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स में जो कि आप अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं. और इसके साथ साथ आप अपनी प्रीवियस जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो सारी एड ऑन कर सकते हैं. नेक्स्ट सेक्शन इज योर स्किल्स. अब
skills में what are they looking for? They are basically looking for a person who has a good ability to communicate, because communication is something, चाहे वो किसी भी field, किसी भी part का employee हो, उसका communication skill has to be good. So in your soft skills, you will definitely write about your soft skills, your analytical skills, your critical thinking skills, ability to manage social media site, because आज की डेट में social media has become a very very important part of our life. So if you are away from that, you are basically away from something which is a very important thing in our life. तो उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना आपको आना बहुत जरूरी है. तो इसको आप अपने स्किल्स में मेंशन कर सकते हैं. जब आप अपने स्किल्स मेंशन करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जिन स्किल्स को देख रही है, द ऑर्गेनाइजेशन जिन स्किल्स को देख रही है, उसको मेंशन करना ना भूलें. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट ट्रेवल मच बट आई ऑलवेज कीप माई ट्रेवल बैग रेडी. देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता और जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए. ताकि if company has a requirement that they are looking for an employee who can travel frequently, I'm always ready. I'm always ready with my bag. I'll just pick up my bag and go. So that way, जो भी requirements उसकी job description में दी हुई हैं, उसको आप पूरे CV में add on करना ना भूलें. इसके साथ कुछ और आप अपने skills add on करना चाहते हैं, so you can do that. So next section comes is your education. जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आप बहुत सारी कंपनीज में जॉब कर चुके हैं, तो आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके बताने की ज़रूरत नहीं है. सो नो नीड टू स्टार्ट योर क्वालिफिकेशन राइट फ्रॉम क्लास 10. यू कैन हाईलाइट योर लेटेस्ट और करेंट क्वालिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव डन माई MBA, so I'll just highlight that I have completed my MBA from so and so university. उसको बुलेट पॉइंट्स में आप हाईलाइट करेंगे. उसमें क्या हाईलाइट करेंगे? यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने कंप्लीट की है, ईयर ऑफ कंप्लीशन एंड परसेंटेज, एंड ऑफ कोर्स स्पेशलाइजेशन. आपकी स्पेशलाइजेशन किस में? द लास्ट सेक्शन इज द एडिशनल सेक्शन. फिर ये अगेन ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं. तो एडिशनल सेक्शन में आप क्या लिखेंगे? वो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहते हैं, लाइक योर अवार्ड्स, योर अचीवमेंट्स, योर सर्टिफिकेशंस, योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और जो भी आपको लगता है कि आपको हाईलाइट करना है जिससे कि आपके सीवी को वेटेज मिले, वो सारे पॉइंट्स आप इसमें हाईलाइट कर सकते हैं. अब ये तो बात हो गई उन लोगों की जो कि एक्सपीरियंस्ड है, जो कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुके हैं. बट अगर आप फ्रेशर हैं तो इसी सीवी में आप थोड़े बहुत चेंजेस करके इसी को आप आगे प्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको सबसे ज्यादा क्या हाईलाइट करनी है? आपकी एजुकेशन, बिकॉज आपके पास कुछ बहुत ज्यादा और दिखाने को नहीं है. सो यू विल स्टार्ट विद योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10. तो आप 10th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर चुके हैं तो वो सारा आप लिखेंगे. along with the university you have passed out from, year of passing and the percentage of CGPA score. तो ये सारी डिटेल्स आप इलेबोरेट करके लिखेंगे. नेक्स्ट इज योर वर्क एक्सपीरियंस. आई नो इसमें बहुत ज्यादा दिखाने के लिए आपके पास नहीं है, लेकिन इसमें आप क्या दिखा सकते हैं? इसमें आप दिखा सकते हैं all the projects and the research work that you have done during your college tenure. तो जो भी रिसर्च आपने की है, जो भी प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, इसके साथ साथ आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के ब्रेक्स में अगर आपने कुछ इंटर्नशिप्स की हैं तो प्लीज उसको मेंशन करना ना भूलें, बिकॉज दिस विल अगेन गिव द कॉन्फिडेंस टू द एम्प्लॉयर that you have a very mature, professional and responsible outlook and you are responsible right from the early age of your life. आप अपना खुद से आप अपनी responsibility ले रहे हैं. And if you have been appreciated, अगर आपके कोई recommendations हैं या appreciations आई हैं तो उसको highlight आप कर सकते हैं. Now अब हम बात करते हैं additional section. Additional section में भी आप बहुत सारी चीजें हैं जो add on कर सकते हैं. इसमें क्या आप add on कर सकते हैं? जैसे कि आपने अपने कॉलेज में बहुत सारे पार्टिसिपेशंस किए हैं, आपने कॉलेज फेस्टिवल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है तो आप वो लिख सकते हैं. किसी एंट्रेंस एग्जाम में आप अपीयर किए हैं तो आप वो डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं. आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आप पार्टिसिपेट कराए आपने स्कूल कॉलेजेस में वो आप लिख सकते हैं. अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स आप लिख सकते हैं अपनी सारी.
if you have attended any conferences, any short courses that you have done, any volunteer work with the NGO, any special hobby that you have. For example, if you are a good guitar player and you have played guitar in various concerts, or you are doing something of your own, please mention that. If you are managing any social media site, अगर आपका खुद का कोई पेज है या आप अपने ब्लॉग्स लिखते हैं या you run a YouTube channel, so ये सारी चीजें जो है आप अपने एडिशनल वर्क में मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो चीज हमें ध्यान में रखनी है वो है कि हमारे सीवी का जो फॉन्ट होना चाहिए वो बिल्कुल सिंपल और क्रिस्प होना चाहिए। हमें और फैंसी कलर्स को यूज नहीं करना, बिकॉज दैट गिव्स अ वेरी अनप्रोफेशनल लुक टू योर सीवी। सो योर सीवी शुड बी वेरी सिंपल, क्रिस्प। कलर कॉम्बिनेशन आप ब्लैक और ब्लू ले सकते हैं। जो भी आप एरियाज, जैसे कि अगर आप एजुकेशन के बारे में लिख रहे हैं तो एजुकेशन को आप हाईलाइट करिए। अगर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसको हाईलाइट करिए। बुलेट और पॉइंटर्स का इस्तेमाल करें आप। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट वी ऑल डू इज वी इग्नोर द प्रूफ रीडिंग पार्ट। तो क्या होता है, हमने सीवी बनाया, बहुत अच्छे से उसको लिखा, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, लेकिन उसको दोबारा चेक करना हमने मिस कर दिया। एंड व्हेन वी प्रेजेंट आवर सीवी टू द एम्प्लॉयर, और अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक निकल आती है तो दैट बिकम्स अ वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट। सो जब भी आप अपना सीवी बनाएं, प्लीज उसकी प्रूफ रीडिंग यूज जरूर करें ताकि जो भी स्पेलिंग एरर्स हैं आप उसको करेक्ट कर लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी स्किल्स हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है उसकी रेलेवेंस आपके सीवी में होनी बहुत जरूरी है। इफ यू आर लुकिंग टू क्रैक दैट जॉब ऑप्शन, तो उसकी रेलेवेंस के लिए सपोज दे आर आस्किंग फॉर पीपल हु आर गुड इन हैंडलिंग सोशल मीडिया साइट, हु आर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, हु कैन राइट वेरी वेल, तो ये सारी चीजें जो है आपने मेंशन जरूर करनी है ताकि दे कैन रिलेट, यस दीज आर द स्किल्स दैट वी आर लुकिंग फॉर एंड दिस कैंडिडेट इज अ गुड वन। Many a times we think that हमारा सीवी जाएगा तो एम्प्लॉयर बैठ के उसको इत्मीनान से पढ़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। Let me tell you, गूगल जैसी कंपनी के पास एक दिन में 1 मिलियन सीवीज आते हैं and recruiter will just give 6 seconds to read your CV. If they find it relevant, good, else your CV will be in the bin. So if you want to avoid that, please make your CV very very effective. So, अगर आपके ड्रीम्स बहुत ऊंचे हैं, क्या आपको बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करना है, तो वहां तक जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है और वो है आपका सीवी। सो प्लीज रीड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन दिस वीडियो एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज दोबारा सब्सक्राइब ना करें, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। So that's all for today. We'll come back again with a new topic and new video. So till then, thank you.